Would like to welcome you all to a talk by Sami Ahmed Khan, a writer, a researcher, a teacher who also translates and edits books. His primary interest is science fiction. He is the recipient of a Fulbright grant to the University of Iowa, USA, where he studied science fiction and creative writing. Sami Ahmed Khan holds a PhD in science fiction from Jawaharlal Nehru University. His debut future war thriller, Red Jihad, won 2 literary awards, and his second novel, Aliens in Delhi, garnered rave reviews. Has taught at IIT Delhi and Jawaharlal Nehru University, and currently discusses life and literature at GGS Indraprasth University, Delhi, where he also supervises MPhil and PhD research on science fiction. He calls himself an extraterrestrial time traveler. Sami is not just a writer and an academic, he's also a documentary producer, a fiction writer, an academic. He is a man who wears many hats, a bright young scholar, and I'm very happy to present before you Dr. Sami Ahmed Khan, who is going to talk about science fiction in the times of Corona. Sami, please welcome Dr. Sami Ahmed Khan. Thank you, Professor Unial and University of Lucknow. It is an absolute pleasure to discuss SF with you. And I hope that through the course of this discussion, I would not call it a lecture, through the course of this discussion, all of us would learn a little bit more about the world around us, how we think, how we behave, how science and technology intervenes in our daily lives, how it permeates almost every single sphere of influence. Whatever we see, it's somehow shaped and contoured by science, and therefore science fiction becomes a way of responding to such change. So what I have done is that I have a short PPT here, and perhaps I can talk to you through that PPT if I get the permission. Ma'am, may I use that PPT to talk about? You're welcome. Okay, thank you very much. So I'm going to begin with the PPT. I'm going to share my screen. And so guys, please understand that this is not a lecture. This is just a discussion. So whatever you want to ask, whenever you want to ask, just feel free to butt in, just feel free to intervene and ask. I'll be more than happy to respond. And I may be talking to you, but that does not mean I know everything about science fiction. You may know more than I do. And in that case, we'll have a two-way flow of ideas, because that is what discussions are all about. So feel free to just jump in and tell me that, okay, can you please talk about that again? Can you please revisit what you just said? I think you are wrong. So if you say all these things, I'll feel really happy, right? So, well, let me just share my screen and then we can begin. Okay. So let's just start talking about SF in the times of Corona. Now, before we begin, I want you guys to ask yourself a series of questions. I don't expect a response, because these are questions that you keep pondering over, you keep chewing over, chewing on these questions, and then suddenly it hits you. What are these questions? Let's see. Try to answer this question. What is the coronavirus for me? What is it for me? How does my personality as an individual, as a social being, as a member of a community, as a member of a nation, as a member of a species, how does my position get affected by this novel coronavirus, COVID-19, which has hit us? I wish all of you health and safety, you and all your loved ones. These are difficult times for us. These are trying times for us. And that is why I believe that SF gives us an insight into what is actually happening. Because just think about this. एक साल पहले या अगर 12 महीने पहले मैं आपसे पूछता कि ये क्वारंटीन क्या होती है, होम क्वारंटीन क्या होती है, ये डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आप हंसते कहते ये आप बेवकूफी है, ये तो कुछ होता नहीं, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं. But just imagine, after 10 months alone, we are here, we're talking about questions which we thought only belonged to the future. We are living a lifestyle which we thought only belonged to the future. We are living in a world that we thought belonged either to the future or to a different sort of plane of existence altogether. The future is here. The future is now. The future is today. Because all the anxieties we had about superbugs and virus and zombie apocalypse, it is now revisiting us. So those of you who are into zombie films, who have seen, say, World War Z, you know what I'm talking about. This fear
This fear of everyone and everything, that this fear of no matter who that person is, that person may be close family, that person may be a close friend, that person may be quote unquote infected. And if that person is infected, well, that information, that infection is communicable. And the fear psychosis that generates, the anxiety that generates. So SF has been a template which has allowed us to access these kind of anxieties much before they happen to us in our real world, right? So again, try to answer this question. What is the coronavirus for me? How did this virus come into being? What impact does this virus have on me? How does this virus affect my family? How does this change the world around me? And above all, what is our future within this new world? If you ask yourselves any of these questions, any of them, you are automatically writing science fiction. You're automatically thinking science fiction, because the questions that you are engaging with, these are questions that SF primarily engages with, right? So the purpose of this talk here is that we're going to talk a little bit more about science, science fiction, corona, the world around us, science and technology, newer ways of thinking. And we're going to talk about this through the vehicle of Indian science fiction. So I'm not going to focus on Western science fiction, which again has a long and rich history, but I'm going to talk about our science fiction, Indian science fiction, about what is it that our science fiction does, how is it different from, say, fantasy, mythology, what is speculative fiction, what is popular fiction, what is literary fiction. So these are some questions that I'll briefly touch upon, and then we can proceed. Okay. Any questions or observations till now? No questions, no observations? Okay, guys, lest I feel I'm talking to a blank screen, please say yes or no when I ask you, because, well, I can't assume that you said yes. Silence is not yes. That is the basic rule that we all know, that silence does not mean yes. So in case it's a yes or no, assert it, tell me, so I can proceed accordingly. That's a request. No questions, sir. Can you do that for me? No questions. Okay. Just an interruption, Sami. They are going to put their questions in the chat box, because Of science fiction, the definition from the 1920s, Hugo Gernsback, who's considered the founding father of science fiction in the US at least, he says that literature, which is 75% literature and 25% science, is science fiction, right? So there is a sort of an interplay between literature and science, and that becomes science fiction. So any scientific issue that you are talking about becomes science fiction. So if you're talking about, say, genetic engineering and its impact, becomes science fiction. We're talking about space travel. If you're talking about exploration, if you're talking about the zombie apocalypse, if you're talking about superbugs, if you're talking about viruses out of control, if you're talking about artificial intelligence, these automatically become science fiction, right? But then next came Isaac Asimov, the great Asimov. He said that SF is that branch of literature that deals with the reactions of human beings to changes in science and tech. So how does science and tech impact me? If your novel, your short story, your film discusses that particular aspect of how increase or changes in science and tech changes my behavior, that becomes science fiction. Brooks Landon says that SF is the literature that considers the impact of science and tech on humanity. Now, again, he's borrowing from Asimov there, right? And there are a lot of definitions of science fiction. I'm not going to go into them because it's something which is very vast, very expansive, and there's no conclusive sort of a way of defining SF as of now. So just a few definitions at you so you know what you are talking about and I'm talking about, and then we can problematize them further. Christopher Evans said that SF is the literature of what if. सवाल उठता है, what if क्या होता है? What if मतलब speculation, what if मतलब जो नहीं है, what if मतलब अगर ये होता तो क्या होता, अगर artificial intelligence sentient हो जाए तो क्या होगा, अगर aliens आ जाएं तो क्या होगा, अगर zombies आ जाएं तो क्या होगा, अगर genetic engineering में cloning possible हो जाए तो क्या होगा. इस किस्म के सवाल, इस किस्म के जितने भी सवाल आते हैं उससे डील करता है साइंस फिक्शन. What if, right? बट अब इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है. वो बड़ा सवाल ये है कि is science fiction the only genre that speculates and creates alternate worlds? क्योंकि आप लोग तो अभी तक सोच रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में बेस्ड है, किसी और प्लैनेट पे बेस्ड है, कहीं और है. अभी तक तो हम सब यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये काम सिर्फ साइंस फिक्शन ही कर रहा है? इसके लिए अब हमें समझना चाहिए साइंस फिक्शन, फैंटेसी और माइथोलॉजी, ये जो तीन
जॉनर्स आप कह सकते हैं, ये क्या है, इनके बीच में किस किस्म के डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, वो डिफरेंस कैसे नरेट किए जाते हैं, वो डिफरेंस कैसे अप्रोच किए जाते हैं, और वो डिफरेंस कैसे नेगोशिएट किए जाते हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछने लगेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। केस इन पॉइंट बीइंग स्पेसिफिक। 3 एग्जांपल दूंगा सिर्फ। From fantasy, I'll take the example of Harry Potter. From mythology, I'll take the example of Thor. And from science fiction, I'll take the example of Star Trek. If we were talking about the literature of what if, kya hota? All these 3 are literatures of what if. अब एक चीज सोचिए, एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब लैपटॉप पे या अपने फोन्स पे हैं, हाँ या ना? हैं, राइट? Yes, sir. ओके जी। अब अपना फोन या लैपटॉप जो भी है अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखिए, एक बार रखिए एंड देन कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, we can okay. hear. Yes, sir. Okay, so my connection kind of conked out. Okay, so क्या आपने लास्ट चीज क्या सुनी? क्या मैंने पूछा था आपसे? सर फोन क्या और लैपटॉप लेफ्ट मैंने साइड में बोला था, रखना था। बताइए। हाँ, अब आपने अपना लैपटॉप अपने लेफ्ट साइड पे रख दिया। ओके, नाउ close your eyes, think it's not you who's doing it, and move your laptop or your cell phone to the right instantly. Do it. Done? Yes, sir. Okay, अब आंखें खोलिए and look what is happening in front of you. What you just witnessed, can somebody tell me what just happened? And just imagine that you are not the actant here. You did not do what was done. Somebody else did it. But somebody please tell me what happened. क्या हुआ अभी? The thing moved itself. The thing moved. The thing moved, right? और कोई जैसे मनीष ने कहा the thing moved, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? Ice has become lively or it has taken shape of a living being. बिल्कुल। और कुछ सोचिए, कोई और? Anything else? Anyone else? कोई और कहना चाहेगा कोई बात इसके बारे में, इसके मुतालिक कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए जरा। वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। So okay, so now you guys are talking like philosophy. You're talking about philosophy here. This is a very sort of time and being Heidegger sort of statement. अच्छी बात है। चलिए, और प्रीतम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यही मैं आपसे समझना चाह रहा था। What you just witnessed was displacement of matter from point A to point B within the blink of an eye. ऐसे मैटर A से B पे पहुंच गया। अब if you say, if you're writing a novel and if you say that this thing happened because of, well, magic, you are writing fantasy. If you say this happened because of the will of a divine being, this becomes mythology. If you say this happened because of science and quantum mechanics, this becomes science fiction. So essentially what is happening is the same. Something which is speculative, something which is, well, way beyond our understanding, but the way you approach it, the epistemology that you use to define external reality, that determines the difference between science fiction, fantasy and mythology. और शायद इसीलिए आप यहाँ देखिए फैंटेसी में हैरी पॉटर का जो एपरिशन या फ्लूक ऑर्डर है। अच्छा, हैरी पॉटर के कितने फैन हैं यहाँ बताइए? फैंस ऑफ हैरी पॉटर प्लीज कम ऑनलाइन एंड से यस हैरी पॉटर। Yes, obviously. Yes, Harry Potter. Hi guys, good to meet you. I'm also a nerd. It's always nice to meet fellow nerds. Okay. Yes. So अब आप खुद देखिए हैरी पॉटर में when you have the flute order, right, or the process of apparition from point A to point B. So you as a human being or you as an organic entity or you as a thing in existence moves from point A to point B like this, है ना? हाँ या ना? अब ये क्यों हो रहा है? आप अगर उसको बोल रहे हैं कि ये मैजिक की वजह से हो रहा है तो आप फैंटेसी लिख रहे हैं। आप अगर बोल रहे हैं कि थॉर की वजह से हो रहा है या बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की वजह से हो रहा है, यू आर राइटिंग मिथोलॉजी। आप अगर लिख रहे हैं इसको कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हो रहा है कि योर एटम्स और योर मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट डिसअसेंबल्ड एंड देन रीअसेंबल्ड एट अ डिफरेंट प्लेस यूजिंग दिस एनर्जी सोर्स, यू आर राइटिंग साइंस फिक्शन।
ठीक है, समझ गए इन तीन में बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस, इन तीन में बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ गए? Yes, sir. ठीक है. Now let's move on. So essentially what I'm trying to say is that SF, that spec-fic genres, and these are all speculative fiction, right? Speculative fiction is fiction that speculates, जो नॉन माइमेटिक होता है, जो रियलिटी को इमिटेट नहीं करता, that becomes spec-fic, right? So spec-fic genres are not just about what happens but how it happens. That is the way it is described. Can you see it? Can you see the PPT? Guys, can you see the PPT? No, no, sir. No, sir. You can't. No, sir. Hang on. तो आपको बताना चाहिए था, मैं बोले जा रहा हूँ. ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए. I'll sort this out. See, इसीलिए science fiction जरूरी है, because whenever we think that we can rely on science and tech, something happens. So we need to be critical about our, our reliance on science and tech. Hang on. Let me just sort this out. Okay, can you see it again? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes. ये तो आपने देख लिया, ये भी आपने देख लिया, right? Yes, sir. अब हम चलते हैं इस पे. So baby spec-fic genres are not just about what happens but how it happens. That is the way you as a writer, the way you as a documentary producer, you as a filmmaker, you as a poet, you as a short story writer, you as a dancer, you as a painter express it. So the idea of expression, the kind of language you use, the lexicon you use, the sort of mega text you borrow from, the kind of ideas you talk about, and the way you talk about them, the way, that is the most important thing. How you talk about it, becomes, paramount, because that determines what you're writing is SF, F or M. ठीक है. अच्छा, इसमें आप ये भी समझिए कि हम तो बात कर रहे हैं, इस किस्म के पिजन होलिंग की, इस किस्म के कैटेगराइजेशन की, लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है. लेकिन किसी भी कैटेगराइजेशन को, किसी भी पिजन होलिंग को डीकंस्ट्रक्ट करने से पहले, इंट्रोगेट करने से पहले, उसको खत्म करने से पहले आपको पिजन होलिंग समझनी जरूरी है. इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ. ये बहुत बेसिक है कि पहले आप पिजन होलिंग समझिए और फिर आप उस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो ये पिजन होलिंग आप समझ गए कि ये SF होगा, ये F होगा, ये M होगा. आजकल क्या हो रहा है, और पिछले 20-30 साल से कम क्या हो रहा है कि साइंस फिक्शन और फैंटेसी बहुत ज्यादा फ्यूज हो रहे हैं, और इतने ज्यादा फ्यूज हो रहे हैं कि आजकल मार्केट में एक नया लेबल आ गया है, उसको कहते हैं SFF, साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी. तो वो इन दो जॉनर्स को और फ्यूज कर रहा है. और जब आप लिखते हैं, आप ये सोच कर नहीं लिखते कि मैं SF लिख रहा हूँ, या F लिख रहा हूँ, या M लिख रहा हूँ. आपकी एक कहानी निकल जाती है, राइट? एक फसाना आप लिखते हैं, फसाना आपको लिखता है, वो बात दूसरी है, लेकिन आप फ्यूज करते हैं, आप दो पैराडाइम्स फ्यूज करते हैं, आप दो आइडियाटिक फ्रेमवर्क्स के साथ हाइब्रिडाइज करते हैं, उनको एंगेज करते हैं, राइट? अब मैं आता हूं इंडियन SF पे, कि हम क्यों इंडियन SF के थ्रू ये सब सवालों को अप्रोच कर सकते हैं. अच्छा, James Gunn says that SF is more occupying a more significant place in the Indian education and intellectual circles because India is experiencing an exponential technological change. ये बात तो हमें माननी पड़ेगी. एक एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो पूरी दुनिया में हो रहा है, और खासकर हमारे यहाँ हो रहा है. और वो जो चेंज है, उससे हमारी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं, हमारे सोचने के तरीके कैसे चेंज हो रहे हैं, हमारे समझने के पैराडाइम्स कैसे चेंज हो रहे हैं. ये सब जो सवाल आते हैं, उनसे SF एंगेज करता है. जैसे मैं आपसे एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्टूपिड एग्जांपल. मेरे पास जो सेलफोन होता है ना, आपके पास सेलफोन, आपका जो हैंड मूवमेंट है उसको एक स्पेसिफिक तरीके से कॉन्टूर कर देता है, शेप कर देता है. मैं एक बार किताब पढ़ रहा था, हार्ड कॉपी थी, हार्ड बाउंड थी. तो जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं जूम इन करना है. तो मैंने हार्ड बाउंड पे अपने उंगलियां चलानी शुरू कर दी, जूम इन वाली. I did that for 5 seconds and nothing happened. And then I felt really stupid when I realized that this is a hard copy. फोन में आदत है, समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. राइट, फोन में आदत है हमको जूम इन करने की, लेकिन सबकॉन्शियसली अब आदत ऐसी हो गई है कि हम हर चीज के साथ अप्रोच करते हैं, तो ऐसे एंगेज करते हैं. तो इस किस्म की चीजों के बारे में भी ऐसे बात करता है. और डेफिनेशंस पे आते हैं. कोई मिल गया, आप सबने देखी है, राइट? Norman Spindler says that anything published as SF is SF. क्यों? Because SF आप कुछ भी पब्लिश कर दीजिए, वो उस पर आप SF का लेबल आप लगा दीजिए. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो डेफिनेशंस हैं वो कंटेंट और फॉर्म से हट के अब
फोर्सेस के हाथ में जा रही हैं कि अब मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी क्या एसएफ है क्या नहीं है, बिकॉज दैट शेप्स क्या चीज बिक रही है, क्यों बिक रही है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है। और कोई भी जॉनर समझने से पहले, कोई भी आइडिया समझने से पहले हमको मार्केट फोर्सेस को समझना चाहिए, राइट। एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है कि एसएफ इज नॉट अ जॉनर, इज नॉट अ जॉनर। जॉनर क्या होता है? मिस्ट्री, रोमांस, हॉरर, एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, राइट। एसएफ इज अ मोड। अब इसको समझने से पहले एक और चीज समझिए, थोड़ा सा डाइग्रेशन कर सकता हूँ एक, आपकी अगर मतलब परमिशन हो तो? यस सर। हाँ, डाइग्रेशन ये है कि हम बात करते हैं लिटरेरी फिक्शन की, लिटरेचर की और पॉपुलर फिक्शन की, करते हैं ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब इसमें बहुत ही रफ डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल, मैं बहुत आपसे मतलब आम बोलचाल की भाषा में मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लिटरेरी फिक्शन और पॉपुलर फिक्शन में क्या फर्क होता है? कुछ मालूम है आप? आई नो आपको मालूम है, लेकिन मुझे समझाइए, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाइए कि क्या फर्क होता है, जिससे कि मैं आगे और सोच पाऊँ। क्या ख्याल है आपका, क्या क्या फर्क होता है इन दोनों में? फर्क वैसे होता है कोई? लिटरेरी फिक्शन, साहित्य जिसको हम बोलते हैं, अदब जिसको हम बोलते हैं, या पॉपुलर फिक्शन में, दोनों सेम चीजें हैं या कुछ फर्क है? चलिए कोई नहीं, मैं आपसे बताता हूँ। लिटरेरी फिक्शन ज्यादातर वो होता है which is driven by characters, right? जैसे मिसेस डैलोवे, वर्जीनिया वुल्फ, it's driven by characters, it's driven by what Clarissa is thinking about, what she wants to do, what's going to happen later in the day, right? Okay. चैट आई है मेरे पास। हाँ, that's a thin line, बहुत सही चीज बोली है स्मृति ने। राशि कह रही है पॉपुलर फिक्शन इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। लिटरेरी फिक्शन आप कह सकते हैं, ये जो डेफिनेशन है बहुत ही रफ, वो ये है कि लिटरेरी फिक्शन वो होता है विच इज ड्रिवन बाय कैरेक्टर्स, whereas पॉपुलर फिक्शन वो होता है, या जॉनर फिक्शन जो होता है, विच इज ड्रिवन बाय कन्वेंशंस ऑफ द जॉनर, कन्वेंशंस ऑफ द जॉनर। तो अगर मिस्ट्री है या डिटेक्टिव है तो कन्वेंशंस ऑफ द जॉनर होगा कि एक बंदा खूनी होगा, एक डिटेक्टिव होगा, वो उसके पीछे पड़ेगा एंड अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू मीट हिज फेट, राइट? अगर हॉरर होगा तो चार दोस्त जंगल में जाएंगे और वहां उनको भूत मिलेगा, फिर वो भूत से बचेंगे एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? एब्सोल्युटली। रुचि ने भी बिल्कुल बहुत सही चीज बोली कि पॉपुलर फिक्शन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कन्वेंशंस, की एक ये नैरेटिव होगा, उसमें ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, और फिर ये होगा, राइट? Whereas लिटरेरी फिक्शन में इट्स ड्रिवन बाय कैरेक्टर्स। अच्छा, अब प्रीतम बोल रहे हैं कि लिटरेरी फिक्शन हैज मोर कैनोनिकल एलिमेंट्स। सवाल मेरा प्रीतम से ये है कि कैनन कौन है और कैनन कौन बनाता है? ये एक और डाइग्रेशन है, ये एक और सवाल है जो मैं आपसे बस छोड़ रहा हूँ, ये सवाल सोचिएगा। कैनन कौन बनाता है? शेक्सपियर, when Shakespeare was writing or performing or talking about his theater or his plays, was he canonical or was he popular? आज तो कैनोनिकल है, बट क्या उस जमाने में क्या था वो? सोचिए। पॉपुलर। जवाब मिल जाएगा आपको कि ये कैनन क्या होता है। कैनन क्या एक स्टेबल चीज है जो फिक्स रहती है, या कैनन भी एक ऐसी म्यूटेटिंग एंटिटी है व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, राइट? एंड फिर इसमें जाके और थ्योरिस्ट ने कहा है कि किन का कैनन सबका कैनन हो जाता है और क्यों हो जाता है, वो दूसरा डिबेट है, उसके बारे में सोचिएगा, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे अभी। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर ये डिवीजन है कि एक पॉपुलर फिक्शन और जॉनर फिक्शन इज ड्रिवन बाय कन्वेंशंस ऑफ द जॉनर, व्हेयरएज लिटरेरी फिक्शन इज ड्रिवन बाय कैरेक्टर्स, तो इसमें आप शर्लक को कहां रखेंगे? शर्लक क्या है, पॉपुलर या कैनोनिकल? हाँ, स्मृति ने बिल्कुल सही बोला, कैनन डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ हेजेमनी ऑफ द टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। शर्लक को आप कहां रखेंगे? शर्लक क्या है? शर्लक लिटरेरी है या शर्लक? बट शर्लक तो ड्रिवन बाय कैरेक्टर्स है, ड्रिवन बाय द कैरेक्टर ऑफ शर्लक है। पॉइंट बीइंग कि ये जो डिवीजन था ना, जिसके बारे में हमने पहले बात की कि लिटरेरी फिक्शन में ये होता है और पॉपुलर फिक्शन में ये होता है, ये भी इट्स अ वेरी थिन लाइन, इट स्टैंड्स ऑन अ शेकी ग्राउंड। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। यस सर। हाँ, ओके। अब सुमा ने एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर? अब प्लीज इतने आप मुश्किल सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल का जवाब तो मैं भी बहुत वक्त से ढूंढ रहा हूँ और ढूंढ नहीं पाया हूँ। साहित्य क्या है, अदब क्या है, या लिटरेचर क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। छोटे सवालों के बारे में बात करते हैं।
जिसके बारे में मतलब एक कंपैरेटिवली छोटे सवाल जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ना लिटरेरी और नॉन लिटरेरी में, कैनोनिकल और पॉपुलर में, कैरेक्टर ड्रिवन और जॉनर कन्वेंशंस ड्रिवन, इट्स नॉट अ फिक्स्ड स्टेबल लाइन, इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां से आइडियाज यहां भी जाते हैं, यहां से आइडियाज यहां भी जाते हैं। हमारा जो कैनन फॉर्मेशन है, जो आपने अभी कहा, हेजेमनी एटसेट्रा एटसेट्रा, हाउ द डोमिनेंट ग्रुप डिसाइड्स व्हाट शुड बी लिटरेचर, और व्हेन अडोर्नो टॉक्स अबाउट द कल्चर इंडस्ट्री, राइट? इसमें हमको ये सिर्फ जानने की जरूरत है कि कैनन कुछ फिक्स चीज नहीं होता है, कैनन कुछ भी कैनन हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि पावरफुल लोग क्या चाहते हैं कैनन हो, स्पेसिफिक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब एजेंडास को मीट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसी के थ्रू इसमें वापस छलांग लगाते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट में कि एसएफ जो है वो जॉनर नहीं है, एसएफ जॉनर है ही नहीं, एसएफ तो मोड है। क्यों? क्योंकि एसएफ में मिस्ट्री भी है, एसएफ में रोमांस भी है, एसएफ में हॉरर भी है, एसएफ में एक्शन भी है, एसएफ में थ्रिल भी है, एसएफ में सस्पेंस भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी ये जॉनर्स हैं, सेपरेट जॉनर्स विद इन पॉपुलर फिक्शन, एसएफ तो इन सबको फ्यूज कर रहा है। तो अगर एसएफ सबको फ्यूज कर रहा है तो एसएफ मोड है। कैसे? कोई मिल गया, देखिए, उसमें मिस्ट्री भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें हॉरर भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें थ्रिल भी है, उसमें सस्पेंस भी है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये साइंस फिक्शन है? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये मिस्ट्री है विद साइंस फिक्शन एलिमेंट्स? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये रोमांस है विद साइंस फिक्शन एलिमेंट्स? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये हॉरर है विद साइंस फिक्शन एलिमेंट्स? एंड लाइकवाइज आप एसएफ ही क्यों बोल रहे हैं इसे? आप एसएफ ही इसको बोल रहे हैं क्योंकि एसएफ आपके हिसाब से एक मोड है, और जो एलियन स्लैश ज़ॉम्बी स्लैश एआई के जो कॉमन टॉपिक्स हैं साइंस फिक्शन के, वो इसमें अपीयर कर रहे हैं, देयरफॉर ये एसएफ हो गई है, राइट? तो ये एक और डेफिनेशन है कि एसएफ को आप एज जॉनर मत देखिए, एसएफ को आप एज अ मोड देखिए। ठीक है, फॉलोइंग मी टिल नाउ? यस सर। यस सर। जहां भी डाउट हो, कुछ ऐड करना हो तो प्लीज आप कुछ बोलिएगा, उससे हम भी कुछ सीखेंगे। शायद क्या पक्का मुझसे आप सीखे ना सीखे, मुझे ये चीज जरूर मालूम है कि मैं आपसे जरूर सीखूंगा। तो कुछ ऐसा हो तो प्लीज बोल दीजिएगा कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने कोई मिल गया के बारे में बात की और आप इंडियन एसएफ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इजंट कोई मिल गया अ डेरिवेटिव ऑफ स्टीवन स्पीलबर्ग्स एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल? वो तो कॉपी किया उसने स्टीवन स्पीलबर्ग की एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल की। उसमें ईटी दिखता भी ऐसे ही है, स्टोरी भी ऐसे ही है, 4 बच्चे होते हैं, उनके पास ईटी आता है, इट्स द सेम थिंग। बट क्या आपको मालूम है कि एसएफ may not always be alien to India, or SF may not always be something we copy from Hollywood, because, well, why? Extraterrestrial, Steven Spielberg's Extraterrestrial is derived from Satyajit Ray's Alien. So when Satyajit Ray, this was a film supposed to be made in the 1970s, I think, by Columbia Pictures US. Satyajit Ray ने deal sign कर ली, सब कुछ हो गया, but then Columbia backtracked, the deal fell through, and after 5 years, 10 years, Steven Spielberg came up with ET and said कि मैंने तो Alien के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, स्क्रिप्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं देखा, right? तो I don't know, I'm not saying किसने किया, but it's not always one way transfer. It can be a two-way transfer. कैसे? अब यहाँ पे थोड़ा आप समझिए। हम कहते हैं कि SF is alien to India because SF, well, 2000 में हमारे यहाँ आया और हम कोई मिल गया बनी और तब से SF शुरू हो गया। ये लेकिन जब हम अपनी थोड़ी भी रिसर्च करते हैं, we find out that is not true, because at the same time when the SF was coming into existence and being in the Anglophonic world or the Francophonic world or the West, not to put it precisely, उसी वक्त पे 1830s, 40s, 50s, 60s onwards इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से SF आया वेस्ट में, और बिल्कुल आया, कोई उस पर शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि SF हमारे यहाँ 15-20 साल पुराना है, ये मेरे ख्याल से गलत एक चीज है, क्योंकि आपने फिर हिस्ट्री के साथ एंगेज नहीं किया। SF जब वहां आ रहा है 1840s, 50s, 60s में, उसके साथ, उसके ऑलमोस्ट साथ ही वो इंडिया में भी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी SF आ रहा है। देयरफॉर ये कहना कि SF is just we just appropriate or copy SF, that's not true. Example आप देखिए, there exists more than a century of a continuous and extremely successful history of modern science fiction in India. सिर्फ 3 जुबानों से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हिंदी में पंडित अंबिका दत्त व्यास की आश्चर्य वृतांत 1884,
बाबू केशव प्रसाद चंद्रलोक की यात्रा 1900, बांग्ला में जे रेज शुक्र भ्रमण 1879, हेमलाल दत्ता's रहस्य 1886 और जेसी बोस की पलटक तूफान 1896। तीसरी जुबान इंडियन इंग्लिश के बारे में भी बात कर लेते हैं। केसी दत्त's अ जर्नल ऑफ 48 आवर्स 1945, 1835 की लिखी हुई कहानी है। एसी दत्त's द रिपब्लिक ऑफ ओडिशा 1845 की लिखी हुई कहानी है। और the best of all feminist utopias, बेगम रोकिया सखावत हुसैन सुल्ताना's ड्रीम 1905, राइट। तो ये कहना कि हमने सिर्फ एसएफ, बिल्कुल चंद्रकांता और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है दैट दिस जॉनर इज ग्लोबल। Indian SF was being produced at the same time it was coming of age in other parts of the world. तो ये बात सही है, ये बात हम मान सकते हैं कि SF जो है वो हमारे यहाँ भी शुरू हुआ जब ब्रिटिश साइंटिफिक एजुकेशन आई यहाँ, पोस्ट मैकॉले मिनट्स 1850s 60s 70s ऑनवर्ड्स। उसके बाद यहाँ SF शुरू हुआ, ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ SF 2000 के बाद शुरू हुआ है, उसके पहले हमारा कुछ SF का ट्रेडिशन था ही नहीं, राइट। तो इस चीज को समझिए। अब ये वाला जो मेरा पर्सपेक्टिव है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, दो एक स्ट्रैंड्स हैं जो करंट इंडियन डिबेट है उसके बीच में है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ जो दो स्ट्रैंड्स हैं SF को समझने के, साइंस फिक्शन को समझने के, पहला स्ट्रैंड तो ये कहता है कि हमारे पास पिछले 5000 साल से साइंस फिक्शन था। पुष्पक विमान was about faster than light travel, ब्रह्मास्त्र were nuclear weapons, राइट। तो एक तो ये आर्ग्यूमेंट है कि हमारे पास SF हमेशा से था। दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारे पास SF था ही नहीं, हमने 21st सेंचुरी में कॉपी करना शुरू किया है। ये दो बिल्कुल डाइवर्जिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके पीछे की फिलॉसफी और एजेंडास डिफरेंट है। मैं इन दोनों से हटके हूं। मेरा ये मानना है कि आप अगर बात करते हैं पुष्पक की और ब्रह्मास्त्र की, उनको आप मॉडर्निस्ट लेंस से कहीं हद तक स्पेकुलेटिव और साइंस फिक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन साइंस फिक्शन साइंस नहीं कह सकते, ठीक है। उसको आप साइंस फिक्शन नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही आप अगर कहें कि आप 20th सेंचुरी में 21st सेंचुरी में SF आ रहा है, उसके पहले हमारे यहाँ SF नहीं है, तो फिर ये जो हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं ये आपको प्रूफ करवा रहे हैं कि SF हमारे यहाँ है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ममता इज कोटिंग फ्रॉम द गोलांग्स बुक, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तरुण के सेंट ने भी यही चीज बोली है। और एग्जैक्टली दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट हैज बीन मेड, राइट। बिल्कुल सही, उसका इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा, अच्छा उसका इंट्रोडक्शन है। ओके, सुमा पूछ रही है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हेन इट स्टार्टेड बट व्हाई द मोड डिड नॉट डेवलप इन इंडिया, राइट। अब हम तो आपसे कह रहे हैं कि मोड तो इंडिया में डेवलप हुआ पोस्ट ब्रिटिश एजुकेशन, बिकॉज साइंस की जो एजुकेशन है, जिसको हम आज साइंस बोलते हैं, जिसकी एक वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है, वो हमारे पास पोस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ही आ रही है, पोस्ट मैकॉले ही आ रही है। और जैसे ही वो यहाँ आई वैसे ही इस किस्म के टेक्स्ट जनरेट होना शुरू हो गए। बहुत ब्रीफली हम आपको बता देते हैं कि, और मैं यहाँ कोई अब वेस्टर्न थ्योरीज कोट नहीं कर रहा, मैं बाल फोंडके को कोट कर रहा हूँ, जो एक बहुत मशहूर मराठी राइटर है, साइंस फिक्शन के ही बहुत बड़े राइटर हैं हमारे, और उन्होंने मराठी में बहुत अच्छी चीजें लिखी है। इसीलिए आप में से जो साइंस फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं, और खासकर आप अंग्रेजी के अलावा या कोई और जबान जानते हैं, हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, जो भी आपकी जुबान हो, उसमें आप जाके देखें, उसमें आप जाके रिसर्च करें। फ्रॉम कुरतुल एंड हैदर्स, रोशनी की रफ्तार से, असमीज में DC गोस्वामी, मराठी में जयंत नार्लेकर, बाल फोंडके, तमिल में सुजाता, बांग्ला में सत्यजीत रे, प्रोफेसर शोकू। तो ऑलमोस्ट हर जुबान में एक ट्रेडिशन रही है, तो उसके साथ एंगेज आप करें। और बाल फोंडके ने कहा है कि जो एवोल्यूशन है ना साइंस फिक्शन का, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो बहुत रफली मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट, कि आपको कुछ एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी साथ में मिल जाए कि हम कैसे SF को अप्रोच कर सकते हैं। बाल फोंडके सेज दैट SF की 4 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट इज ऑफ प्रोटो साइंस फिक्शन। इसमें ही कीप्स मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन 1818। He says that is proto science fiction, साइंस फिक्शन के पहले, प्रोटो। Then he says that the next wave of science fiction, the next stage is science fiction, where the focus is on science. This comes in 1920s. जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बिल्कुल, तनुजा ने कहा है कि many SF works can be found in regional languages. बिल्कुल सही कहा आपने, right? Okay, so बाल फोंडके की second stage, he talks about science fiction,
Again, 1920s onwards, this is spearheaded by Hugo Gernsback, John Campbell. This is the pulp age, which then leads to the golden age of science fiction. Then there is the social science fiction. Now this begins post the Second World War. With Hiroshima and Nagasaki, humanity's romance with science draws to a close. Because science is no longer a Caesar that can do no wrong. Science is something that is responsible for creating horrible, horrible weapons of war, such as the N-bomb. So now the focus is not on science, but social science fiction, as in the impact of that science on the human samaj, on the human society, right? And then comes the next stage, which is of literary science fiction. We have shift from hard SF to soft SF. This is science fiction that pays utmost attention to its form and style. This roughly corresponds to the new wave. न्यू वेव के बारे में आपने सुना होगा, फ्रेंच मूवमेंट थी, सिनेमा में भी, बाकी सब चीजों में भी, साहित्य में भी, एसएफ भी उससे इन्फ्लुएंस रही है, राइट? ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा इंडियन साइंस फिक्शन के बारे में थोड़ा सा। टेक्स्ट, थीम्स, मीडियम्स, सिनेमा के मीडियम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो लोग आप में से कह रहे थे कि एसएफ जो है हमारे यहाँ 21st सेंचुरी में आया, आपसे मैं 2 चीजें देखने को बोलूंगा। अभी जाइए यूट्यूब पे इस डिस्कशन के बाद, जब भी आपके पास वक्त है। 1967 की 2 फिल्में हैं, एक है वहां के लोग और एक है चांद पे चढ़ाई। ये वहां के लोग आप देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको पोस्टर दिखेगा। I think this is one of the first films to show Indian Air Force jets fighting UFOs. So in case you are interested in that kind of fiction, which I am, because it's cool and fun and silly and crazy, तो ये आप जाके देखिए। और एक और फिल्म है चांद पे चढ़ाई, जिसमें दारा सिंह है, जिसमें दारा सिंह फाइट्स लूनर गोरिल्लाज, रेसलर्स एंड रोबोट्स। लेट मी रिफ्रेज, दारा सिंह फाइटिंग, बेसिकली वो कुश्ती लड़ रहा है लूनर रोबोट्स के साथ, लूनर गोरिल्लास के साथ, लाइक मून के गोरिल्लास के साथ। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थीम्स, प्लीज सी दिस फिल्म। अगेन चांद पे चढ़ाई एक और फिल्म है, ये 2012 या 13 की है, तो मतलब सिनेमा में एक ट्रेडिशन रहा है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर इंडिया के पहले कोई ऐसे फिल्म नहीं थी, ऐसे फिल्म्स थी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे भी थी, और ये भी थी। अगर आपको एलियंस और स्पेस ट्रैवल के बारे में जानना है तो ये आप देख सकते हैं। तो सिनेमा से मेरे पास ये 3 एग्जांपल हैं which talk about the idea of the alien extraterrestrial, invasion, intervention। सवाल ये है, जब आप एज क्रिटिक्स इसको अप्रोच करते हैं, तो एलियन इज नॉट जस्ट एन एलियन, एलियन इज द अदर। अब वो अदर कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे उस अदर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये सवाल होते हैं पूछने के लिए। ठीक है, ये सवाल आपको अपने आप से पूछने होते हैं। कैसे इम्पैक्ट करती है? मिस्टर इंडिया में आपने देखा एक गैजेट थी, एक ब्रेसलेट थी, which renders you invisible. Talks about how when what is the digital can become what is real, what is tangible, right? Mission to Mangal talks about Indian cinema is not just Bollywood. You also have beautiful cinematic traditions in Kollywood, Lollywood, Tollywood, right? The Bangla film industry, the Tamil film industry, the Malayalam film industry, the Marathi film industry, right? यहाँ पे दी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से, कॉलीवुड से, एआई का, जिसमें ऑफ कोर्स यंत्रन रजनीकांत की फिल्म थी, जिसको हिंदी और शायद इंग्लिश में भी रोबोट बोला गया था, और फिर 2.0। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम मीडियम अपना शिफ्ट करें, हम बात करें सिनेमा से, हम आ जाएं रिटन वर्ड पे। तो अब देखिए, सिर्फ पोस्ट 2000 नॉवेल्स के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ पिछले 15-20 साल में ही इतना सब प्रोड्यूस हुआ है, और इनके थीम्स देखिए आप। अमिताभ घोष, कैलकाटा क्रोमोसोम टॉक्स अबाउट साइंस, इंडिजिनस साइंस। द लास्ट जेट इंजन लाफ बाय रुचिर जोशी टॉक्स अबाउट फ्यूचर वॉर। सिग्नल रेड, रेमी चैटर्जी टॉक्स अबाउट डिस्टोपिया। Generation 14 by Priya Sarukai Chapadia talks about cloning. Escape by Manjula Padmanabhan talks about cloning. The Beast with 9 billion feet, Anil Menon talks about genetic engineering. So does Butterfly Effect by Rajat Chaudhary. Dome Child by Shiv Ramdas talks about AI. ऐसे ही बहुत सारे short story collections भी हैं. It Happened Tomorrow, again, बालपोन के collection of I think 1993 का है शायद ये, NBT का। इसमें बहुत सारी stories हैं translated from Indian languages into English. ठीक वैसे ही क्लेप्टोमानिया by Manjula Padmanabhan, Shockwave and Other Cyber Stories, The Woman Who Thought She Was a Planet and Other Stories by Vandana Singh, and Breaking the Bow by Menon and Singh, right?
तो इसीलिए भी मैं आया कि जब हम इंडियन साइंस फिक्शन के बारे में बात करते हैं तो आप लोग थोड़ा बॉलीवुड के बारे में समझ जाएं, टॉलीवुड के बारे में समझ जाएं, कॉलीवुड के बारे में समझ जाएं, हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में आप थोड़ा और जानें, उनको थोड़ा और एक्सप्लोर करें, और फिर घूम फिर के, चूंकि हम यहाँ अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम घूम फिर के इंडियन इंग्लिश पे आ जाएं। तो ये हम इंडियन इंग्लिश पे आ गए कि आपको मालूम चल रहा है कि एसएफ का प्रोडक्शन उतना ज्यादा तो खैर नहीं है जितना वेस्ट में हो रहा है, लेकिन उतना कम भी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि एसएफ तो यहाँ है ही नहीं। एसएफ होता क्या है? जब मैं पीएचडी कर रहा था अपनी 10 साल पहले, तो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि एसएफ क्या होता है, हमारे यहाँ तो एसएफ है ही नहीं। और मैं कहता था कि नहीं, हमारे यहाँ एसएफ है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे जो कहते थे कि हमारे यहाँ तो सिर्फ एसएफ ही है, क्योंकि हमारे यहाँ 5000 साल से एसएफ ही रहा है, कोई और मोड नहीं है। तो इन दोनों से बात करके और रिसर्च करके और थोड़ा हिस्ट्री में जाके, पॉलिटिकल साइंस में जाके, इस चीज का एहसास हुआ कि हम दोनों से ही कहीं हटके चलेंगे, कुछ एक नया पैराडाइम क्रिएट करेंगे, जो मैंने कोशिश की है करने की। राइट, अच्छा, अब यही जो मेरी चीज है, आप सब एक स्नीक पीक दे रहा हूँ, प्रीव्यू। सो माय नेक्स्ट बुक, which is sort of a critical catalog of Indian science fiction, usme I hypothesize that Indian SF primarily works at the intersection of three things, of politics, technology and mythology. जो भी आप एसएफ के साथ एंगेज करेंगे वो कहीं हद तक अपनी इमीडिएट पॉलिटिकल रियलिटीज के साथ नेगोशिएट कर रहा होगा, एंगेज कर रहा होगा, वो नई टेक्नोलॉजीज के साथ नेगोशिएट कर रहा होगा, एंगेज कर रहा होगा, और वो कहीं हद तक जो मिथोलॉजी है उससे कॉन्टूर्ड होगा in terms of its structure, in terms of its character names, in terms of its basic operating mechanisms, right? So just a sneak peek. So with this, it's time for questions and discussion. This was a 1 hour presentation. We are done. अब हम आपसे थोड़ा सवाल पूछना चाहेंगे, और आप हमसे पूछिए और हमको थोड़ा बताइए इसके बारे में कि हमने क्या बात की, क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आप पूछना चाहेंगे, राइट? अच्छा, जैसे एक आखिरी क्या 2 सवाल आए हैं। आयुषी पूछ रही है, डोंट वी सी अ जनरल लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिस्ट्स इन सिनेमा? बहुत अच्छा सवाल है। आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं वो या तो सिनेमा में भी, या तो they'll be these crazy, half crazy people, right? And their representation is very stereotypical. So yes, I agree with Ayushi's assessment that we need to actually explore, or this is a PhD topic by the way, या MPhil topic कम से कम जो आपने बताया, the representation of scientists in Indian cinema in Bollywood films from 2000s to 2020s, right? अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। फरा पूछ रही है कि did women writers in Indian subcontinent also contribute to feminist science fiction? Absolutely. 2-3 मैं आपको एग्जांपल दूंगा। वंदना सिंह, उनको आप गूगल कीजिए, जाके पढ़िए। प्रिया सरुकई छाबड़िया, जैसे मैंने आपको बताया। मंजुला पद्मानाभन, जैसे मैंने आपको बताया। सुकन्या दत्ता, पायल धर, श्वेता तनेजा, ऐसे बहुत लोग हैं जो खासकर जो इश्यूज हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, जेंडर वायलेंस के, पेट्रियार्की के, वो फोरग्राउंड करती हैं अपने नैरेटिव्स से। सो फरा, आपको मैं बोलूंगा कि आप जाके वंदना सिंह पढ़िए। यू कैन स्टार्ट विद द वुमन हु थॉट शी वाज अ प्लैनेट एंड अदर स्टोरीज। इट्स अ नाइस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ओके। और यू हैव सॉफ्ट एंड हार्ड। सो अच्छा, चलिए मैं बहुत रफ आपको मैं बता देता हूँ। हार्ड साइंस फिक्शन होता है जो बहुत ज्यादा हार्ड साइंसेस के साथ डील करता है, कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, उसमें थोड़ा इसको बहुत ज्यादा साइंटिफिक कंटेंट उसका ज्यादा होता है। मेरा सॉफ्ट साइंस फिक्शन जो है उसका साइंटिफिक कंटेंट कम होता है, और वो अपना सोशल और पर्सनल इम्पैक्ट पे ज्यादा सवाल पूछता है। ठीक है। रुचि पूछ रही है, सर आई वांट टू आस्क अबाउट योर वर्क, यू हैव मेंशन्ड। जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप, बताइए, थोड़ा अपना सवाल क्लैरिफाई कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। चलिए, इतने और सवाल पूछिए। हाँ, यासिर पूछ रहे हैं, isn't science fiction getting into the lives of people like we believe in mythology? There are also people who believe in these silly stories and अच्छा सवाल पूछा है यासिर ने। यासिर कह रहा है कि ये जो जिस किस्म की हमारे यहाँ जो एक न्यूज चैनल्स ने बना रखा है, जो एक डिबेट का, कि एलियंस आ गए और काउस को उठा के ले गए, ये वो। अब देखिए, ये सब तो सिर्फ टीआरपी की बेवकूफी होती है, लेकिन ये सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, ये यूएस में भी होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। यूएस में बहुत पहले यही नैरेटिव चला था that extraterrestrials used to come, they used to kidnap people, they used to take people away,
right? And similarly they used to do the same with livestock also. तो हम अकेले बेवकूफ नहीं है, ये जो बेवकूफी है पूरी दुनिया में चल रही है. अब क्या करें, क्यों चल रही है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसको एज कल्चरल एज कल्चरल स्कॉलर्स हम स्टडी कर सकते हैं. फिर प्रीतम पूछ रहे हैं कि हैज देयर बीन एनी स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन. अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है. स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन क्या होता है, थोड़ा प्रीतम हमको बताइए कि ये स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन क्या है. मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये, मुझे ये मालूम नहीं है. सो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन. इतने आप बता रहे हैं, इतने मैं नेक्स्ट पे आता हूँ. Yes, in the area 51 theory also. Bilkul, right. So you guys have done your research, you have done your background research, you know what I'm talking about, right? But also talk to me a little bit more about and ask me more about SF in India and tell me about what you think about science fiction in India. क्या आपको लगता है, क्या होता है, क्यों होता है? अब तो आपको बैकग्राउंड मालूम चल गया, हिस्ट्री में भी मालूम चल गई. Now give me some more perspectives. अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों हो गया एकदम से? Can I chip in, Sami? Absolutely, ma'am. Absolutely. Let me tell the audience, my students, that Dr. Sami Ahmad Khan wrote his first novel in 2012. It was published in 2012, Red Jihad. Red Jihad. A very interesting topic, the title. And in 2013, we met at Hyderabad Literary Festival, where he was given the runner-up award at Hyderabad Literary Festival as a Muse India Young Writer. I think I would like you to speak about your own work, Sami. Sure, ma'am. Sure. See, I think that the first novel I wrote, I was, I think, in MA second year, or I had just entered MPhil, and there was a story within me. And I thought I needed to tell this story, because what was happening with me was I was trying to explore what happens to violence. What happens to violence, what happens with violence, and why is it that all these ideologies, they somehow want to establish that I am right and you are wrong. And that has been the cause of much bloodshed. So I was trying to explore that what happens when these ideologies come together, when they intertwine, when they intermesh, when they have their own specific sub-agendas. So using the form of a political thriller, I wanted to explore what violence is within a South Asian, specifically Indian setting, that what happens. And I was very conscious about not having any, central characters, because we think in central characters, we think in binaries, we think in center and villains. And I was like, I want to write a novel where war and violence is the protagonist. Right, so that is what my first novel was all about. It was about war and violence, and I wanted to write something that was pulp. I wanted to write something that was fun to read, that was fast-paced, and I wanted to write something that made you think, and that kind of subverted the established paradigms of genre thriller and the current socio-political setup of the 2007 onwards. 2009 या 10 में मैंने वो लिखी थी, 2012 में वो मतलब पब्लिश हुई. 2 साल लगते हैं कम से कम पब्लिश होने में. When you reach out to publishers and they get back to you, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है. सेकंड नॉवल जो था मेरा, वो मैंने 2014-15 के आसपास लिखना शुरू कर दिया था, शायद उसके पहले भी, और इसमें भी मुझे बहुत वक्त लगा. इसमें मैंने ये डिसाइड किया, अब मैं इसके साथ एक और चीज के साथ खेलना चाह रहा था. सवाल मेरे जहन में था कि डू जॉनर्स मेक कैरेक्टर्स और डू कैरेक्टर्स मेक जॉनर्स. तो मुझे लगा कि पहला जो मेरा था फ्यूचर वॉर पॉलिटिकल थ्रिलर, what I'm going to do, I'm going to take the same characters from that text, same characters. I'm going to place those characters in a science fiction novel, in a science fiction setting, in a science fiction context, and I'm going to talk about an alien invasion. And I'm going to ask myself, how is it that the behavior of these characters is changing when characters are put from one genre to another, from a political thriller to science fiction. So I was consciously trying to fuse the political thriller with science fiction, using the elements of science fiction within an Indian context, because that is what I really want to work on, the Indian context. और सही चीज बोलूं तो ये जो टेक्स्ट हैं ये कहीं हद तक मेरी सोच के मैनिफेस्टेशन थे, लेकिन उससे ज्यादा ये एक और चीज थे और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो चीज ये थी कि I wanted to write something that gave me kicks, that made me happy. I wrote for the process of writing. अब वो छपे ना छपे, कब छपे, कहाँ छपे, उसका क्या रिस्पॉन्स है, मुझे ऑनेस्टली आज भी फर्क नहीं पड़ता है. मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि जब मैं वो लिख रहा हूँ तो मैं उसको बीच बीच में रोक के मैं हंसना शुरू कर दूं या मैं खुश हो जाऊं कि दिस इज नाइस,
दिस इज नाइस, मतलब पढ़ के मजा आया, मुझे पढ़ के मजा आया, राइट? सो दैट्स यू नो व्हाट इट इज। और आज भी मेरा वही होता है, मैं कुछ लिखता हूँ तो आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई एम राइटिंग, like no matter what gory stuff I'm writing, but it should make me happy somehow, you know, so that sort of aesthetic and critical distancing. Okay, दो सवाल और आए हैं, उनको एड्रेस करते हैं। रुचि पूछ रही हैं, is SF a totally specific presentation about thriller, fantasy or mythology, or is it based on reality? हाँ, रुचि पूछ रही है कि can SF be based on reality? Absolutely. SF extrapolates. The job of SF is not to predict, but it extrapolates. It extrapolates based on the current data that you have, based on the current world order in which you live. Example के तौर पे, हम आज सेलफोन सब यूज करते हैं। आप में से कितनों को मालूम है कि सेलफोन सबसे पहले स्टार ट्रेक में यूज हुआ था, स्टार ट्रेक TOS दी ओरिजिनल सीरीज में 1960s में, जब उन लोगों के पास हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर्स थे क्लैमशेल वाले, उसी के बेसिस पे फिर सेलफोन निकले। हम आज जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ satellite communication, it's all because of satellites, it's all because of, you know, internet. Well, Arthur C. Clarke predicted geostationary satellites in a paper in the 1940s. This is something that we can do in the future, right? 1940s में, 1946 के आसपास का पेपर है शायद, exactly मुझे साल याद नहीं है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, right? और आप कोई भी साइंस फिक्शन उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, शुरुआत में मेरी पहली चीज यही थी कि आपको लगेगा कि SF is about a different world, it's about a different planet, it's about a different time. Yes, SF may be based in a different time on a different planet, but it's precisely about our today, because it engages with issues of our today. It engages with communalism, with, you know, terrorism, with violence, with you know, gender discrimination, with economic inequalities, with all the paradigms that we see around us of oppression, suppression, exploitation, repression. SF somehow, not all SF, right, but most of it engages with these questions, that how can we make a better tomorrow? We cannot make a better tomorrow if we write utopias, because if we read utopias, we are like, "Arey, fine, everything is fine." But if you read a dystopia, if you see, say, Hunger Games, you will say, "I will not let this happen in at least my reality." If you see, you know, Maze Runner, you will say, "I will not let this happen at least in my reality." If you see the Divergent series, you will say, I'll not let this happen at least in my reality. So these dystopias, Handmaid's Tale, absolutely. So what these dystopias do, they give us a template to strive for. They tell us what not to be by showing us what could be, and the horrific and the horrifying shape of things to come. These dystopias, Mad Max, they help us create a today so that that horrible tomorrow never happens in the first place. So SF, even when it's set, and in fact, especially when it's set on some other planet or another time location, is about our today. It's about Delhi 2020, it's about Lucknow 2020, it's about New York 2020. कहीं भी सेट हो वो, भले ही वो मार्स पे सेट हो 25th सेंचुरी में, लेकिन जो इश्यूज उसमें रेस किए जा रहे हैं, वो ऐसे रेस किए जा रहे हैं जिनको पढ़ के हम हमारे आज पे के बारे में सोच पाए। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैंने जो एक ट्रायंगुलर हाइपोथेसिस को मैं अब डेवलप कर रहा हूँ, उस ट्रायंगुलर हाइपोथेसिस में ये होता है कि सपोज आप यहाँ पे हैं, आप मेरे साथ यहाँ बैठ के हम आपस में बात कर रहे हैं, हम मौजूद हैं एक दूसरे के सामने। ब्लैक मिरर का अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया तनुजा ने। अब एक ट्रायंगल बनाइए अपने जहन में, उस ट्रायंगल के एक वर्टिस पे आप रखिए, उसके दूसरे वर्टिस पे आप रखिए ऑथर को जिसकी बुक आपने अभी पढ़ी, और उसके तीसरे वर्टिस पे आप रखिए वो दुनिया जो उस ऑथर ने बनाई है। 3 वर्टिस हो गए। अब ये 3 वर्टिस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? आप, द रीडर, द ऑथर, the producer, and the produced world, the world of the text. So how does the world of the reader interact with the world of the text, interact with the world of the author? ये जो ट्रायलेक्टिक बनता है ना, इससे आप कहीं हद तक एंगेज कर पाते हैं, सोच पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ठीक है, और असुर का एग्जाम्पल दिया है यासिर ने, which blends science and mythology and addresses reality। बिल्कुल। Ayushi कह रही है, I think portraying aliens as the enemy also helps us in understanding perhaps the changes in the behavior or narrative when the enemy shifts from other people to a common enemy. Absolutely, right? तो आप समझ गए, right? अच्छा, लिटरेचर वालों के लिए, हम लोगों के लिए, the idea of other is very important.
not just as the psychological other or the philosophical other, but also the political other, right? तो उसमें from Sartre to Foucault to phenomenology to our own political others, you have people talking about us versus them, I versus you. So ये other का जो idea है ना, ये aliens की shape में manifest होता है science fiction. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे examples हैं. Okay, फिर जया भी कुछ कह रही है. बिल्कुल सही. जया ने बहुत अच्छी चीज लिखी है. जया, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि हम अपने आप को डिफाइन करना चाह रहे हैं. जो मैं कह रहा था, जया ने बिल्कुल वही लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया है जया ने लिख के. जया, हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे. प्रीतम फिर बोल रहे हैं कि हाउ कैन अच्छा, प्रीतम पूछ रहे हैं कि एक्सट्रैपोलेशन ऑफ द फ्यूचर, हाउ कैन दिस बी इंटीग्रेटेड टू द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, especially in the Indian context. Let me just give you 2 examples. The French military has hired a team of 5 science fiction writers today, like today as in aajkal mein. French government has hired a team of 5 science fiction writers to create scenarios, dangerous scenarios for the French nation, which the army can then tackle. तो बिल्कुल आपने जो कहा, फ्रांस वही कर रहा है. यूएस ने भी बिल्कुल यही सेम चीज की, that they approach science fiction writers to talk about, you just think about what can go wrong so that we can have contingencies in place about what we do when that goes wrong, right? इसी में एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा प्रीतम को. आई थिंक चार्ल्स गैनन का एक स्टडी है, चार्ल्स गैनन, GANNON, आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, वेयर ही टॉक्स अबाउट कि कैसे मिलिट्री पॉलिसी और साइंस फिक्शन यूएस के केस में इंटरट्वाइन करता रहा है पिछले 20-30 साल में. तो इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसको आपको थोड़ा और जवाब मिल जाएंगे. और फिर एलिजाबेथ पूछ रही हैं, हाउ डू यू सी देवदत्त पटनायक्स मिथोलॉजी इन एसोसिएशन विद साइंस फिक्शन. मतलब जैसा मैंने कहा कि मिथोलॉजी को जब आप मिथोलॉजी की तरह अप्रोच कर रहे हैं तब तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस. बट अगर मिथोलॉजी को आप साइंस की तरह अप्रोच करें, देन साइंटिफिकली दैट इज नॉट वैलिडेड. आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते अभी तक, एज ऑफ नाउ, राइट? उसके लिए जो एक साइंटिफिक एक पूरा एपिस्टेमोलॉजी होती है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फरेंस की, वो आप अप्लाई करते हैं. तो आई पर्सनली वुड नॉट सी मिथोलॉजी एज साइंस. दोनों सेपरेट चीजें हैं. ठीक, वैसे महविश बोल रही हैं कि डिस्टोपिया, वी फॉर वेंडेटा, बिल्कुल समझने वाला पॉइंट ये है महविश, आप भी ये समझिए, सब लोग ये आप समझिए कि जब आप डिस्टोपिया के बारे में बात करते हैं ना, जितना आप डिस्टोपिया करेंगे, पढ़ेंगे, एंगेज करेंगे, उतना ही आप इंश्योर करेंगे कि आपके साथ डिस्टोपिया ना हो. ठीक है. ममता डोरबी पूछ रही है, अच्छा एस्केप, अरे वाह, एस्केप पे तो मैंने भी काम किया है ममता, बहुत अच्छी बात है. और आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, बिल्कुल सही. What kind of framework one should use to differentiate comprehensively between the themes within the Indian? इसमें फ्रेमवर्क ना आपको ढूंढना पड़ेगा. यही प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ अभी तक इंडियन फ्रेमवर्क कोई डेवलप नहीं हुआ था, जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, जो मेरे नेक्स्ट मोनोग्राफ में आ रहा है 4-6 महीने बाद. यही चीज जो आपका सवाल है, यही चीज मैंने अपने पूरी PhD में पूछा है अपने आप से कि इंडियन फ्रेमवर्क कहाँ है. हमारे पास SF स्कॉलर्स तो हैं, वेस्ट में सारे SF स्कॉलर्स हैं, अच्छे स्कॉलर्स हैं, फ्रॉम से फ्रीडमैन टू स्टीफन चेरी रोने, मार्क बोल्ट, शेरिल विंड, जॉन राइडर, एलेक, मतलब बहुत सारे हैं. लेकिन वो एक वेस्ट के हिसाब से स्टोरी बना रहे हैं, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना रहे हैं. ऐसा क्यों है हमेशा कि वेस्ट इज द थ्योरी एंड वी आर द डेटा? क्या ऐसा होता है, राइट? तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इसीलिए मतलब जो मोनोग्राफ का नाम भी है, दैट इज स्टार वॉरियर्स ऑफ द मॉडर्न राज, दैट हाउ डज द राज रिस्पॉन्ड्स, द सो कॉल्ड राज रिस्पॉन्ड्स टू द वेस्ट, क्रिएटिंग इट्स ओन थ्योरी एंड यूजिंग इट्स ओन फिक्शन, राइट? तो बहुत सही आपने बोला. एक मैं और चीज बोलूंगा, एक और फ्रेमवर्क है इंडियन पैराडाइम से, बोधिसत्व चट्टोपाध्याय का मिथोलॉजी. तो वो भी एक आइडिया है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इंडियन फ्रेमवर्क अगर आपको चाहिए तो, वेस्टर्न फ्रेमवर्क तो आपको बहुत मिल जाएंगे, इंडियन फ्रेमवर्क मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए. ठीक है. और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो बिल्कुल पूछें हमसे. Sir, have you ever gotten frustrated if anyone tried to force a point of view on you about the? हाँ, अब स्मृति ने सवाल पूछा है. ठीक है, स्मृति ने सवाल पूछा है कि क्या मैं कभी फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ. देखो, मैं तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ. मेरा रीजन ये है, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, आपको जो सोचना है आप वो कीजिए, आपका व्यू पॉइंट आपको मुबारक, मेरा व्यू पॉइंट मुझे. तो मैं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुआ. अगर आप
इतना बिलीव करना चाहते हैं तो आप कीजिए, मैं आपसे सिर्फ लॉजिक की बात करूंगा, साइंस की बात करूंगा, और बाकी आपकी मर्जी है. We can't really force people to think the way we want them to think, because if we also become this kind of normative people कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोचिए वरना आप गलत हैं, मैं इस किस्म की मतलब मेंटालिटी में, जहनियत में यकीन नहीं करता हूँ. मेरी मर्जी है, मेरा जो दिल है, मेरे अपनी सोच समझ के हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दीजिए, और आप जो कर रहे हैं आप कीजिए. ऐसा होता है. लेकिन मैं तुम्हारा सवाल समझ रहा हूँ वैसे, ठीक है. वुड यू, अब ईशा पूछ रही हैं कि is Indian SF to some extent influenced by traditional Indian literature? Absolutely, यही चीज मैंने बोली. जो मेरी PTM जो hypothesis थी उसमें भी mythology का component था. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जयंत नार्लिकर की एक कहानी है, The Ice Age Comet. Right now, Jayant Narlikar is a brilliant scientist and an amazing Marathi writer. Right? आप सब जानते हैं जयंत नार्लिकर कौन है? The Jayant Narlikar. उनकी एक कहानी है Ice Age Comet, and Jayant Narlikar is somebody who has always talked about superstition और यही सब चीजें कि mythology को साइंस में कन्वर्ट ना करें. राइट? लेकिन उनकी स्टोरी में भी स्पॉइलर है थोड़ा सा, आप पढ़ के देखिएगा. उनकी स्टोरी में भी आप अगर पूरा नैरेटिव देखेंगे तो the operation that he chooses is called invasion of Indra. Right? The name of the operation itself is invasion of Indra because it has got something to do with the skies. Right? So even when he's talking about he's talking against superstition, he's talking against considering mythology as science, but at the same time he's borrowing from that rich mythological tradition and saying that we don't have to accept this mythological tradition as science, but we can appreciate and respect it for what it is and use it inside this. So this is what Jayant Narlikar does with much panache. So आप पढ़ के देखिएगा. Okay, ईशा कह रही हैं, would you say that Indian SF is also, हाँ यही, we need more of feminist science fiction. बिल्कुल ईशा, मैंने आपको 4-5-6 नाम दिए हैं अंग्रेजी में ही, इंडियन इंग्लिश में ही. आप वो पढ़ के देखिए. ये पूरा बटलर और जोआना रस, ये तो पूरा है ही है, वहां तो है ही. हमारे यहाँ भी अच्छे लोग हैं. और ईशा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये लिखा. और फिर साथ में राजकुमार पूछ रहे हैं, टॉकिंग अबाउट साइंस फिक्शन इन स्पोर्ट्स, वी कैन लुक अपॉन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन मॉडर्न क्रिकेट इन पर्टिकुलर. ओके, ठीक है. तो क्रिकेट एंड साइंस फिक्शन. अच्छा, स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन के बारे में बात हुई थी, मुझे एकदम से याद आया. कोई मिल गया में वो सीन है ना बास्केटबॉल वाला, क्या वो स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन है? वो स्पोर्ट्स मिथोलॉजिकल फिक्शन है, क्योंकि जो जादू है, जादू में बी एन एलियन देयरफॉर बिलोंगिंग टू द रेल्म ऑफ साइंस फिक्शन, बट द पावर्स ही यूजेस बेस्ड ऑन द सन, एंड जादू इज शोन एज अ क्वासी मिथोलॉजिकल फिगर. तो आई वुड से स्पोर्ट्स मिथोलॉजिकल फिक्शन, राइट, रादर देन स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन. क्योंकि जब तक जादू एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि मेरी जो पावर है उसका एपिस्टेमोलॉजी कैन बी कॉग्निजेबल एंड इज वैलिडेटेड बाय साइंस, तब तक despite being a semantic element associated with science fiction, jadoo is more of mythology, right? Or in fact ये paper भी है, I think Jessica Langer और Dominic Alessio ने बात किया how the figure of jadoo itself has been created and patterned on Krishna. That is why the the blue body, the blue sort of wise age. तो आपको अगर पढ़ना है तो ये ऐसे आप पढ़ सकते हैं by Jessica Langer and Dominic Alessio. मिल जाएगा आपको, JSTOR पे सब मिल जाएगा. You just have to go and Google. JSTOR is our sort of go to place. ठीक है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. I think it has been a very interactive session, Sami, because the way you have encouraged the students to discuss, ask questions, and participate with great enthusiasm. Are there any more questions? His reading, his understanding is amazing, and now the students know at whom to go to whenever they plan to work on science fiction. Absolutely. I'm a nerd. See, I don't consider myself as a teacher or a scholar. ये सब बड़े लोग, मतलब ये मतलब ये प्रोफेसर उनियाल टाइप के लोग, बड़े लोग करते हैं. मैं तो फैन हूँ, मैं सिर्फ फैन हूँ, और मैं नर्ड हूँ, और मुझे पढ़ने का और उसके साथ नर्ड आउट करने का बहुत शौक है. तो वो मुझे आता है करना, और उसमें मुझे खुशी मिलती है. तो उसमें जितनी मेरी हेल्प हो सकती है मैं ऑब्वियसली करूंगा. एक तो खैर नर्ड कम्युनिटी है. एक सवाल और आया है मैम, इफ आई मे टेक इट विद योर परमिशन. Yes, please go एक ahead. सवाल और है, हाउ फार अलोंग डू यू थिंक द इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री इज फ्रॉम मेकिंग अ मूवी लाइक अराइवल? हाँ, अच्छा सवाल है.
देखो SF के लिए ना बजट बहुत चाहिए होता है। प्रॉब्लम ये है कि हॉलीवुड के पास वो बजट होता है, बॉलीवुड के पास भी वो बजट होता है, बट बॉलीवुड उसके साथ एक्सपेरिमेंट उतना करना नहीं चाहता, क्योंकि जो एक टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि बॉय मीट्स गर्ल, बॉय फॉल्स इन लव विद गर्ल, यू नो, गर्ल हेट्स बॉय, बॉय चेजेस आफ्टर गर्ल, इसका मार्केटाइजेशन और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है और ये एस्टैब्लिश्ड है। SF वाली फिल्मों का जो पोटेंशियल है मार्केटाइजेशन और मोनेटाइजेशन का, वो उतना एस्टैब्लिश नहीं है, हालांकि लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे अभी एक आरती कड़व की फिल्म आने वाली है कार्गो के नाम से, शायद वो फिल्म फेस्टिवल में कहीं उस पे आप मतलब थोड़ा और कर सकते हैं। हाँ, कार्गो, बिल्कुल बिल्कुल, मनीष ने बिल्कुल वही चीज बोली। तो वो थोड़ा आप देख सकते हैं। फिल्में ऐसी अच्छी फिल्में बन रही हैं, टाइम लगेगा हमको वहां तक पहुंचने में, क्योंकि हैंग ऑन, राशि क्या नेटफ्लिक्स पे आ गई है कार्गो? ओह, इट्स देयर। ओह वाओ, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी समथिंग टू डू। आज ही अभी ये करके मैं जाऊंगा और मैं कार्गो देखूंगा। राइट, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तो कार्गो में आप देखिए, अब कार्गो में भी आप देखिएगा कि मिथोलॉजी कैसे यूज हो रहा है, पॉलिटिक्स कैसे यूज हो रहा है और टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रहा है, जो PTM हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपसे बात किया था। राइट, जिसको मैं आप बुक में मैं उसको मतलब ट्रांसमिट थीसिस बोलता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने मतलब बुक में उसका नाम ट्रांसमिट थीसिस है, आपको समझाने के लिए PTM थीसिस मैंने बोला था, क्योंकि वो इट्स मोर क्लियर। मैं बिल्कुल जाकर देखूंगा। और हाँ, सवाल ये था, what are the difficulties faced by Indian scholars working on science fiction? For instance, resources, library exclusively for SF studies, a fan club. अब ये सुमा ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। फिर से इस किस्म के सवालों से ही हम बहुत जूझे हैं जब हम कर रहे थे साइंस फिक्शन पे। लेकिन मेरा मानना ये है कि when there is a will, there is a way. अगर आपको साइंस फिक्शन पे कुछ करना है तो आपको कहीं ना कहीं से मटेरियल मिल जाएगा। अब थैंक्स टू Amazon एंड फ्लिपकार्ट सारे प्राइमरी टेक्स्ट तो आपको मिल जाते हैं। थैंक्स टू JSTOR सारे सेकेंडरी टेक्स्ट भी आपको मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ बैठ के 100 किताबें पढ़नी है और उसमें से आपको डेवलप करना है। राइट, सो बेसिकली ऑल यू नीड राइट नाउ इज इंटरनेट कनेक्शन, टाइम टू रीड एंड द एबिलिटी टू जस्ट engage with those texts. Like सब भूल जाओ, just drown in the text and you'll be happy. The best way you can spend your time is if you start drowning in texts. People let you down, texts never let you down. The world let you down, you know, the world lets you down, but the world of the text never lets you down. So find your own words and then, well, down in those texts. That's what I do, and it's fun. Let me tell you, it's fun. It's not that bad as it sounds. Okay, so with this I think we are done. Ma'am, ma'am, to you, please. Ma'am, you're on mute, I think. Yeah, it has been a very interesting session, very interactive. And Sami has, as always, been extremely enthusiastic about his area of interest. And this would now encourage my students to read Dr. Sami Ahmad Khan. We too have many nerds in our department. And now I would like to invite Professor Madhu Singh for a formal vote of thanks. Madhu Singh. Yeah, hello Sami. On behalf of the Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow, I take this opportunity to extend a vote of thanks to you, our Chief Speaker, for sparing your precious time and being here for this particular virtual session, and involving the students to a great extent through your interesting, informative and interactive discussion. It was quite visible that the students could connect with you immediately and instantly. Thank you for being such a wonderful speaker. The topic was very, very interesting, science fiction in the times of Corona. A wonderful session, and I think our students would look forward to having more such sessions with you, and I'm sure they have greatly benefited from your knowledge and from your presence, and for your very pro-student, very student-friendly attitude, where language could never become a barrier, because many of our students, they are not from English
convent educated background. Many of they come from various regional backgrounds. So this was very, very encouraging. And I should also thank Professor Ranu Nial for organizing, arranging, motivating students to participate, and a very heartfelt thanks to the dear colleagues, friends for being here, and we look forward to having more such sessions with you, Sami, in future, of course. Thank you, thanks a lot, many thanks, warm wishes for being here, and it was such a great pleasure for all of us. Thank you. Thank you so much, ma'am. बहुत शुक्रिया लखनऊ यूनिवर्सिटी का, आप सबका, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके बोल पाऊँ. Thank you so much. It was absolute pleasure interacting with students, and it's always nice to talk to fellow nerds. And I could see that there are a lot of nerds here. So आप सबको मेरी तरफ से hi. It's always pleasure talking to you guys. Keep on reading more, keep on thinking more, and happy nerding out to all of the students here. And thank you, Department of English, Lucknow University, Professor Unial, Professor Singh. It was a pleasure being here. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. Thank you very much. Thanks a ton.